കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ഡെസ്ക് അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. കാര്യം 5 മണിയോടുകൂടി തന്നെ 58% എന്നുള്ള കണക്കെത്തിയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ അധികം പ്രോത്സാഹജനകമാണ്, വളരെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സംവിധാനത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ സൂചന കൂടിയാണത്. വളരെ നിർഭയമായി ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രംഗത്ത് പോലും എത്രത്തോളം സജീവമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല നല്ല ലാവിഷായിട്ട് റോഡിൽ തല്ലും കൂടി, BJP PDP ഒക്കെ കൂടി. അപ്പൊ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും നോർമലായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനും സഞ്ജയ് കൗശലും ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിട്ട് അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരും. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക അഭിമുഖം ഉണ്ട് ജിഷ്ണു തയ്യാറാക്കിയത്. BJP അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ആർട്ടിക്കിൾ 370 തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് BJP വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സത് ശർമ്മ. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP പുതിയ ഇതിഹാസം രചിക്കുമെന്നും സത് ശർമ്മ ജമ്മുവിൽ ജനൻ TV പ്രതിനിധി ജിഷ്ണു കൃഷ്ണ നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. നമുക്കത് കാണാം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജനൻ TVയോടൊപ്പം ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മന്ത്രിയും ഒപ്പം BJPയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള സത് ശർമാജി ചേരുന്നുണ്ട്. സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് us in the busy schedule of election campaign. धन्यवाद कृष्णा जी, आपका भी स्वागत है जम्मू कश्मीर में. और एट फर्स्ट 10 साल के बाद चुनाव असेंबली चुनाव हो रही है जम्मू कश्मीर में. कैसा है चुनाव की लहर, प्रचार सब कैसा चल रहा है? ऐसा है कि एक बहुत अच्छा वातावरण जो है वो बना है. 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 और उसके बाद 35 से हटने के बाद प्रदेश भर में डेवलपमेंट के कार्यों में जो है वो तेजी आई है. इन डेवलपमेंट के कार्यों के साथ साथ पत्थरबाजी जो पिछले समय में लगातार से जो थी वो की जाती थी, आज इतिहास बन के रह चुकी है. आम जनता को आज लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है और नरेंद्र भाई मोदी जी के ध्यान में भी है कि जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो है हमारी प्राथमिकता है. और हमने देखा है कि शुरू से लेकर माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी और पार्टी के माध्यम से भी लगातार से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है हो रही है. और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हम सब जानते हैं कि पुराने समय में भी हमने इतिहास बनाया था 25 सीटें जीतकर उस समय में, और आज जब डिलिमिटेशन के बाद सीटें भी बढ़ी हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाने जा रही है, अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाने जा रही है. And this is the first assembly election after the abrogation of Article 370. What was the changes come in Jammu Kashmir after the abrogation of Article 370, and what was the benefit BJP get from this situation? यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है. आपके ध्यान में आएगा कि कंपैरिजन में 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पत्थरबाजी की घटनाएं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी हैं. जो बच्चे पहले अपने बस्तों में, अपने स्कूल जाने के बस्तों में पत्थर डाल के ले जाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके जा रहे हैं. 370 हटने के बाद ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय था कि G20 जैसा एक बड़ा इवेंट जो था हमारे कश्मीर में हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ, वो अपने आप में एक उदाहरण था. फार्मूला 4 जो रेसेस होती हैं, कार रेसेस होती हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि, हालांकि उससे पहले भी यहाँ पर ऐसी कभी रेस शायद बहुत कम हुई होंगी, लेकिन 370 हटने के बाद हमने देखा कि फार्मूला 4 कार की रेसेस भी जो थी यहाँ पर हुई, और लोगों के बीच में आज एक माहौल है. कुछ दिन पूर्व मुझे हमारे जो
पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ हैं, इनके साथ लद्दाख में जाने का मौका मिला। कुछ लेट हो गए थे हम लोग। रात्रि जब हम लोग डल झील के किनारे पहुंचे तो हमें 8 घंटे उस डल झील को क्रॉस करने में लगे। आप सोचिए कि रोड्स के ऊपर इतना रश था, लोग शाम को बाहर निकलते हैं। इससे पहले 370 हटने से पहले क्या होता था, लोगों को लगता था कि 6 बजे के बाद सब बंद है, लोग अपने घरों में घुस जाते थे। लेकिन आज वहाँ इतना शांति का माहौल बना है, और शांति का माहौल तो आपके सामने ही है कि आज सबसे ज़्यादा तिरंगा जो है वो कश्मीर में बिकता है, और हर आदमी अपने घरों के ऊपर तिरंगा फहराता है। जबकि 370 हटने से पहले तो कुछ नेता ये भी कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आज हर आदमी अपनी छत के ऊपर जो है वो तिरंगा फहरा रहा है। ये अपने आप में उदाहरण है कि 370 हटने के बाद डेवलपमेंट का जो वातावरण बना है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण है। बट शर्मा जी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस और पीडीपी, वो जो they are giving promises to the people, they will restore the article 370 when they will win and when they will get the ruling chance. ऐसा है कि देश की ये विडंबना है कि देश की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जो है, इसने हमेशा से जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर भी इन्होंने सरकार बनाई, पीडीपी के साथ भी बनाई, और कोई समय था इनकी अपनी सरकार भी थी। कभी इस प्रदेश के हित के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। और आज अगर वातावरण बना है और उस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, जिन्होंने कहा है कि हम लोग 370 को पुनः वापस लाएंगे। 370 हटने का क्या फायदे थे? 370 हटने में वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी जो आज़ादी के समय अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आए थे, उनको वोटिंग का हक नहीं था जम्मू कश्मीर में, उनको नौकरियां करने का हक नहीं था, उनको बच्चों को पढ़ाई भी जो थी करने का जो था वो हक नहीं था, उनको कोई हक जो था वो नहीं था। गोरखा समाज के ऐसे लोग थे जो भारत के दूसरे हिस्सों से जम्मू कश्मीर में बसे थे, उनको हक नहीं था। उसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के लोग थे जो सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम करते थे, उनको कोई हक नहीं था यहाँ पर वोट डालने का, नौकरियां करने का। लेकिन 370 हटने के बाद ये सब पॉसिबल हुआ है। हमारे यहाँ की किसी बच्ची की शादी पंजाब में हो जाती थी, आपके कहीं केरला में हो जाती थी, तो उसका हक जो था वो छिन जाता था। She was deprived from all the benefits. उसके जो स्टेट सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर बनता था उसके ऊपर लिखा रहता था वैलिड टिल मैरिज, और उसके बाद नया बनाना पड़ता था। आप सोचिए कितना भेदभाव था। ये सब वापस लाने का प्रयत्न जो है वो 370 को वापस लाने के बाद आप सोचिए, एक वहाँ पर प्राचीन भगवान शिव का जो है वो मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसकी सब हम लोग पूजा करते हैं, उसका नाम बदलने की साजिश जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ वहाँ पर हरि पर्वत है, उसका भी नाम जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इन लोगों को आप समझ चुके हैं, अलगाववादी सोच के साथ ये पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रदेश में को चलाना चाहती हैं। लेकिन आज देश सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है, डेवलपमेंट में तेजी हो रही है, और जो कुछ वो चाहते हैं यहाँ पर कोई आदमी जो है वो नहीं होने देगा। और मेरा मानना है कि ये चाहे इकट्ठे होकर लड़ें, चाहे अलग अलग होकर लड़ें, भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। And BJP was made a historic performance in 2014 by getting 25 seats, and that time it was the second largest party in Jammu Kashmir. This time, what was the expectation and what was the development plans BJP took in front of the people? 10 वर्ष के अंतराल में मैं भी पहली बार जब 2014 का चुनाव था तो मैं भी विधायक के नाते चुना गया था। हमें तो 10 वर्ष का समय मिला है, और 10 वर्ष के समय में हमने अपने माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी और केंद्र सरकार के माध्यम से भी जो है वो कार्य किए हैं। 25 सीटें 2014 में आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी इनको डबल करेगी। पहली उससे 25 से पहले
हम लोग 11 पे थे, एक बाद में ज्वाइन किया 12 पे थे, हमने 12 को 25 किया और अब 25 को 50 करने की कवायद जो है वो चल रही है। पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में जा रहा है, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का आज बोलबाला है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर हम 5वें 6ठे नंबर पर रहते थे कोई समय था, आज हम लोग नंबर 1 पे अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी चुनाव जो है वो जीतने जा रही है। और आप मान लीजिए कि इस बार 43 सीटें हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, 19 के लगभग जो है कश्मीर में हम लोग लड़ रहे हैं, और ये 62 सीटों में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। Sir, at last, what was the possible plans or project for the rehabilitation of Kashmiri Pandit, and what is BJP going to do in this case? कश्मीरी पंडित समाज को बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वापस जाना है, और वापस जा भी रहे हैं, वहाँ पर वो नौकरियाँ भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि अगर प्रदेश के किसी हिस्से से कोई परिवार विस्थापित होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये कार्य रहा है, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस विषय में कार्य भी किया है, वो कर भी रहे हैं, और माननीय होम मिनिस्टर साहब भी इस विषय को लेकर चिंतित हैं। कश्मीरी समाज को विस्थापित जो हमारा ये कश्मीरी समाज है, इनको वहाँ पर रीएस्टेब्लिश करना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती रहेगी। Okay, thank you so much. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചാലും സഖ്യം ചേർന്ന് മത്സരിച്ചാലും അവരെ ജനങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും BJP ഇത്തവണ ഇതിഹാസം രചിക്കും എന്നുള്ളതുമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ BJP വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സത് ശർമ്മ ജനൻ ടിവിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജമ്മുവിൽ നിന്ന് സഞ്ജയ് കൗശലിനൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം.